के क्वेश्चंस बाकी है ना? चैप्टर 1 के करवा दिए? ओके। चैप्टर 1 आई थिंक कल रिवाइज हो गया था, चैप्टर 2 बाकी है ना पहले से? दो चैप्टर की है, क्योंकि तीसरा चैप्टर सर ले रहे हैं। पर उसने क्या कंटेंट पढ़ाया वो मैं कैसे करूं? Okay, so in the last lecture we have completed the revision of chapter number 1, and I have given some questions for the mid-semester exam, right? So today we will start with the chapter number 2 from the beginning, right? I'll scroll the PPT, and in whatever the slides you are facing the difficulty, just let me know, right? Just stop me and I'll explain that topic again, and I'll just make a question of chapter number 2, right? And you have to write that question in your notebook for the mid semester 1, right? कुछ क्वेश्चंस मैं लिखवाऊंगी चैप्टर 2 में से, जैसे हमने कल चैप्टर 1 में थोड़े क्वेश्चंस लिखे हैं उस तरह से आज चैप्टर 2 के क्वेश्चंस लिखेंगे. So we'll start with chapter number 2. Let me share my screen. Okay, is my screen visible to online students? Yes, ma'am. I have already shared the PPT of chapter number 2 in the e-content there. Okay, so starting with the chapter number 2, first of all, let me know application layer. What are the protocols of application layer? And DNS, right? So first is we can say HTTP, FTP, SMTP, IMAP, POP, and DNS. These are the protocols of application layer, right? So starting with the application layer, we have seen that application layer is the topmost layer of the OSI model, which is in direct contact with the user, right? So whatever the data transmission that takes place, that is done by using the application layer, right? Application layer is not an application, it's not an application, right? But we can say it's one of the layer of the OSI reference model. Then we have seen the client server architecture and peer-to-peer architecture, right? So if I say the client server architecture, तो client server architecture में दो entities होती है, client and server, which are communicating with each other. First of all, the client will request for anything to the server. Server will send back the response. There are certain protocols which are used for the communication. Then next is peer-to-peer architecture. That means in which we can say all the devices on the network are connected with each other, right? Peer-to-peer में શું હોય? Where all the devices, जितने भी devices है वो सारे एक दूसरे के साथ connected होंगे. Another point we can say the connection which is them between the two devices is a point-to-point connection, dedicated point-to-point. I have explained this terminology. What is dedicated point-to-point? ये कीवर्ड है, जब पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करते हो तब ये लिखना है दैट एवरी डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क आर कनेक्टेड विथ अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. तो यहाँ पे डेडिकेटेड क्या है?
डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट मतलब क्या? एक पीसी टू अनदर पीसी एक लिंक होगा, लिंक तो एक ही होगा, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट। पर डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट मतलब पता चल जाता है कि भाई एक लिंक होगा जो दो पीसी को कनेक्ट करता है। डेडिकेटेड दैट मीन्स दैट लिंक कैरीज डेटा ओनली फॉर दोज टू पर्टिकुलर डिवाइस ओनली, राइट? सिर्फ वो दो डिवाइस के लिए ही डेटा कैरी कर सकता है वो लिंक। यस हर्षवर्धन। लेट्स से कि अगर मान लो यहाँ पे ये डायग्राम दिया है वो अलग है, मैंने वन नोट में एक डायग्राम अपलोड किया है, राइट? उसमें डिवाइसेस, ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमने जो पीयर टू पीयर बेसिक क्या है, जैसे डिवाइसेस कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और कैसे पॉइंट टू पॉइंट लिंक होती है, दैट डायग्राम आई हैव अपलोडेड इन वन नोट। लेट मी जस्ट शो यू। वन नोट में मैंने अपलोड किया है। हाँ डाला। हाँ 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 उसमें है, क्लाइंट सर्वर भी है और पीयर टू पीयर भी है। डायग्राम इसलिए अपलोड किया है ताकि आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो, राइट? हाँ हाँ ऐसा बोल सकते हैं, राइट? और वी कैन से कि पीयर टू पीयर में एक डिसएडवांटेज ये है कि स्केलेबिलिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ पीयर टू पीयर। डिसएडवांटेज क्यों? क्योंकि इसका कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई भी डिवाइस में ऐड कर रही हूँ, लेट्स से कि मेरा नेटवर्क है उसमें 5 डिवाइसेस है, मैंने 6th डिवाइस को ऐड किया, तो वो 6th डिवाइस को मुझे उन 5 डिवाइस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट? लेट्स से कि ये तो सिर्फ 5 डिवाइस है, लेट्स से कि अगर 100 डिवाइस है, राइट, और मैं 101 डिवाइस ऐड कर रही हूँ, तो मुझे वो 101 डिवाइस मैंने ऐड किया वो मुझे और 100 पीसी के साथ करना पड़ेगा, राइट? सो इट बिकम्स एन headache and tedious task. Scalability is the biggest, we can say, the disadvantage of peer to peer, right? और क्लाइंट सर्वर का वी कैन से कि उसमें स्केलेबिलिटी का इश्यू नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक डिवाइस जो इंट्रोड्यूस होता है नेटवर्क में, वी जस्ट हैव टू कनेक्ट इट विद द सर्वर, राइट? सो स्केलेबिलिटी इज नॉट एन इश्यू इन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। Then we have seen web and HTTP, right? तो ये हमने देखा था। HTTP क्या है? HTTP हमने कल भी डिस्कस किया था लैब में। वेब एंड HTTP। HTTP, आज मेरी आवाज कम आ रही है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा आती हूँ। HTTP क्या है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फुल फॉर्म है, राइट? उसके बारे में और क्या बोल सकता है? What are the features of HTTP? Okay, HTTP में और क्या? It's a हाँ, तो HTTP क्या है? फुल प्रोटोकॉल या पुश? फुल प्रोटोकॉल, राइट? So one of the functionality of the HTTP कि HTTP में क्या होता है? There will हाँ हाँ वो ये स्टेटलेस होता है HTTP। HTTP हाँ, इट इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, राइट? उसकी बहुत सारी फंक्शनलिटीज है, एक एक करके बताओ ताकि मैं यहाँ पे भी जोर से बोल सकूं और इन लोगों को भी सुनाई दे। पहले HTTP वर्क्स ऑन पोर्ट नंबर 80। नेक्स्ट पॉइंट बोलो तुम। इट इज एन इन बैंड प्रोटोकॉल, इट इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, इट इज अ फुल प्रोटोकॉल। फुल प्रोटोकॉल क्यों बोला जाता है? पैचिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर, दैट्स व्हाई इट इज अ फुल प्रोटोकॉल। और
बहुत सारे पॉइंट्स बोले थे, बोलो। persistent, non persistent, हाँ, it uses two connections, right? It uses persistent as well as non persistent connection, but by default in the browser http uses persistent connection, वो दोनों यूज करता है, पर by default उसका persistent रहता है। हाँ पोर्ट, हाँ it works on port number 80, persistent है तो http 1.1 होगा, नॉन persistent है तो http 1.0 और दूसरा 1.1, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट http। और कोई पॉइंट छूट रहा है http के बारे में? स्टेटलेस, यानी कि स्टेटलेस प्रोटोकॉल इसलिए बोला जाता है कि लेट्स से कि क्लाइंट ने अगर कोई यूआरएल, कोई वेबसाइट विजिट की, राइट, और फिर उसने टैब क्लोज कर दिया, फिर टैब ओपन करके फिर से वही वेबसाइट विजिट करता है, राइट। तो वो प्रोटोकॉल ऐसा नहीं है कि एक बार क्लाइंट को वो रिक्वेस्ट सर्व करने के बाद दूसरी बार उसे ऐसा बोलेगा कि मैंने कर दी है, राइट। वो सर्व कर, जितनी बार बोलता है उतनी बार सर्व करता है, क्योंकि उसके पास कोई स्टेट मेंटेन नहीं रहता है, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। क्लियर? और कोई बाकी रहता है? आई थिंक 7 to 8 पॉइंट्स हुए HTTP के, तो लिख सकते हो ना? हाँ persistent, हाँ HTTP 4 मार्क्स में आराम से पूछा जाता है, बट इट डिपेंड्स। HTTP तो 2 मार्क्स में भी हो सकता है, 3 मार्क्स में भी, 4 मार्क्स में, बट डिपेंड्स आपको कितना लिखना है, पर आपके पास इनफ वो होना चाहिए कि आप पॉइंट्स लिख सको। 1 मार्क्स में 2 पॉइंट होने चाहिए, 1 मार्क्स में 2 पॉइंट, राइट। तो 2 मार्क्स में 4 पॉइंट, तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो। तो एक्स्ट्रा तो नहीं मिलेगा, 2 मार्क्स के लिए पूरा पेज भर के भी लिखोगे कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, बाकी के क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो नेक्स्ट इज persistent एंड नॉन persistent। आप मुझे बताओगे, उसमें मैंने 2 लेक्चर से समझाया था। हाँ हाँ, persistent बताओ। हाँ। किसमें? नॉन persistent में? ओके ओके, तो persistent में हम ऐसा बोल सकते हैं that we require to connect two entity only one time, right? For that we have a 3-way handshaking process। एक बार 2 होस्ट कनेक्ट हो जाने के बाद वो जितना भी चाहे फाइल ट्रांसफर कर सकता है, right? As and when the file transfer complete, server sends the response to the client। After that, client receive that response from the server, then and then only the TCP connection will be terminated, right? सर्वर ने जैसे सेंड कर दिया, उसके बाद डायरेक्ट कनेक्शन क्लोज नहीं होगा जब तक क्लाइंट वो डेटा को रिसीव नहीं कर लेता, फाइल को रिसीव नहीं कर लेता, तब तक वो रहेगा। 1 मिनट। ओके, एंड फॉर दी persistent, ये persistent के बारे में था, राइट। नॉन persistent में क्या होता है कि लेट्स से कि कोई क्लाइंट ने कोई ऑब्जेक्ट के लिए रिक्वेस्ट किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द TCP connection will be established between that two entity। as and when the server serves the request to the client, after that the TCP connection will be closed, right? So उसके बाद connection है वो close हो जाएगा। So this is we can say about the non-persistent connection। For every object we need to establish a separate TCP connection, right? So that we can say about the non-persistent। हाँ, yes, नॉन persistent के लिए हम बोल सकते हैं इट इज a HTTP 1.0
और persistent के लिए HTTP 1.1। IP एड्रेस, IP एड्रेस असाइन करना पड़ता है नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए। हाँ, नेटवर्क ऑब्वियसली कोई भी नेटवर्क कोर डिवाइस है। So this is the example of non-persistent. मैंने वन नोट्स में भी डायग्राम्स रखे हैं, राइट? सो यू जस्ट गो थ्रू इट वंस। ये पता है उसमें होस्ट नेम किसे बोलते हैं और ऑब्जेक्ट पाथ किसे बोलते हैं, राइट? इट इज क्लियर, ये मैंने समझाया था। देन ये पूरी प्रोसेस बताई है कि रिक्वेस्ट कैसे सेंड की जाती है, सर्वर को वो रिक्वेस्ट कैसे रिसीव होती है, फिर सर्वर उसका रिस्पॉन्ड कैसे देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी HTTP। देन फॉर नॉन परसिस्टेंट उसमें हमने देखा था RTT का कंसेप्ट, राउंड ट्रिप टाइम। तो वो क्या होता है? व्हाट इज राउंड ट्रिप टाइम? For example, request after mining, so by 10 seconds में रिस्पॉन्स आ जाएगा। आगे जाओ। रिस्पॉन्स એટલું બધું મગજ હાલે ને। राउंड ट्रिप टाइम मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हो, राइट, तो उसमें राउंड ट्रिप लिखा हुआ होता है। इफ यू माइट हैव ऑब्जर्व, कभी ऑनलाइन टिकट बुक की है बस के लिए या ट्रेन के लिए कुछ? हाँ, तो उसमें हाँ તમે GSRTC ની વેબસાઇટમાં જ્યારે બસની ટિકિટ બુક કરાવશો ને, તો એમાં જ્યારે ટિકિટ બુક કરશો ત્યારે નીચે લખેલું હશે कि वन वे और राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब क्या कि रिटर्न भी हमारी टिकट बुक हो जाती है, राइट? सो सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड अगेन डेस्टिनेशन टू सोर्स इज कंसिडर एज वन RTT। उसमें डिले भी नहीं होता है, रिस्पॉन्स टाइम भी नहीं होता है, ऐसा कुछ कंसेप्ट है ही नहीं। सोर्स टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन टू सोर्स, પણ એમાં રિસ્પોન્સ ટાઈમ એ કેલ્ક્યુલેટ ન થાય અને એમાં ડિલે ન આવે। એક સાયકલ કમ્પ્લીટ કરે અહીંયાથી અહીંયા ને અહીંયાથી અહીંયા, ઈ RTT। ठीक, એટલે એડવાન્સ વિચાર્યું। ओके, so that is one RTT we can say। so non persistent connection હોય તો એમાં એક ઓબ્જેક્ટ માટે કેટલી RTT જોઈએ? एक ऑब्जेक्ट માટે। I just asked for one object, how many RTTs we required? हाँ, હું बताऊं હવે? पहली માટે for establishing the connection, right? हाँ, એ RTT માં જ આવે। બીજું શેના માટે? for requesting the object, પછી એનો રિસ્પોન્સ આવે। so for every non persistent connection we require 2 RTT, અને જો total time કીધું હોય, that is what is the total time for one object in a non persistent connection, then we can say 2 RTT plus file transmission time। હવે RTT માં કેટલા delays include થાય? RTT में એવી રીતે નહીં, આપણે જે ડિલેઝ ભણ્યા 4 ટાઈપ્સ ના, ઈ ડિલેઝ માંથી કયા ડિલેઝ ઇન્ક્લુડ થાય?
Have we discussed delay yesterday? Delays yesterday કઈ ડિટેલ માં with equation કાલના हाँ प्रोपोगेशन प्रोसेसिंग एज वेल एज क्यूइंग राइट। अगर एक आरटीटी कंसीडर करते हो जो फाइल रिक्वेस्ट के लिए है देन देयर विल बी अ प्रोपोगेशन डिले राइट, प्रोसेसिंग डिले, प्रोसेसिंग होगा फिर ही वो वापस आ पाएगा, एज वेल एज क्यूइंग डिले राइट। सो अगर आरटीटी बोल रहे हैं तो 3 डिले, ट्रांसमिशन अलग થી કેલ્ક્યુલેટ થશે। ટ્રાન્સમિશન એટલે શું કે કોઈ પણ પેકેટ whatever the packet I have that I want to send to another host, if I am putting that packet on the link for transmitting that packet from one end to the another end, that is a transmission delay right। હજી delay થોડા confusing લાગે છે? ट्रांसमिशन डिले क्या होगा? हाँ तुम बताओ। नहीं नहीं, अब सरस सरस व्यवस्थित રીતના કે हाँ ना फॉर्मूला नहीं, कंसेप्ट समझाओ। हाँ yes good, so the time required to put the packet on the link, હવે obviously packet મોટું હોય, if the packet size is big we require more time to put the packet on the link right, so it totally depends on the size of the packet right। so transmission delay આમાં calculate એટલે નથી થાતું because RTT ખાલી આ જ consider કરે છે right। અહીંયાથી નીકળે ત્યારે એનો ટાઈમ સ્ટાર્ટ થાય, જ્યારે એનો પેકેટ મૂકે ત્યારથી ટાઈમ સ્ટાર્ટ નથી થતો, બટ જ્યારે અહીંથી પેકેટ નીકળે છે that is from the source side and reaches to the destination and again destination to the source, that is 1 RTT। so it includes 3 delays right, that is propagation, that is distance covered by the host, then distance upon speed એટલે propagation delay, ત્યાં જઈને destination પર પહોંચીને 2 delays calculate થાય, that is queuing delay and processing delay। next પાછું destination પર આવે ત્યારે transmission delay plus transmission delay, that will be counted separately right, કેમ કે transmission delay તો totally packet કેટલું છે એના ઉપર depend કરે, so we can say 2 RTT plus file transmission time। એટલે ટ્રાન્સમિશન ડિલે માં કેલ્ક્યુલેટ થઈ જાય, પણ અહીંયા તો રિક્વેસ્ટેડ જાશે ને, ક્લાયન્ટ તો રિક્વેસ્ટેડ કરશે, એને પેકેટ નથી મૂકવાનું, ઈ જે ટ્રાન્સમિશન ટાઈમ છે એનો જ છે, સમજાણું? ક્લાયન્ટ ઇઝ જસ્ટ રિક્વેસ્ટિંગ, પેકેટ કોણ મૂકે છે લિંક ઉપર? સર્વર। શેની? ટ્રાન્સમિશન ડિલે ની ફોર્મ્યુલા શું થાય? concept which is size of a packet or we can say the length of the packet divided by bandwidth। propagation delay ની શું થાય? distance upon speed, કેટલું ડિસ્ટન્સ કવર કરે છે between host A and host B અને કેટલી સ્પીડ માં કવર કરે છે, so that we can say distance upon speed, that is the formula for propagation delay। તો અહીંયા સુધી ક્લિયર બધું? bandwidth फिर हमने मैसेज फॉर्मेट देखा था, HTTP रिक्वेस्ट मैसेज एंड HTTP रिस्पॉन्स मैसेज। इसके क्वेश्चंस मैंने दूसरे क्लास में लिखवाए हैं बट मैं मंगवा लूंगी और फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगी, ठीक है। अभी मिड सेम को तो थोड़ी देर है, तो उसके पहले देव नहीं लिखा TC1 कोई स्टूडेंट ने पर्सनली ना ओळखती, हाँ पर बधा स्टूडेंट मैं किसी को पर्सनली नहीं जानती, गर्ल्स ने लिखे हैं, पूजा और वो सब ने लिखे हैं, शिवांग गर्ल्स से मैं ले लूंगी, बॉयज का पता नहीं है किसी ने लिखा है कि नहीं, बट गर्ल्स ने सभी ने लिखा है तो उसकी बुक लेके ले लूंगी। So HTTP request message and response message, so what are the format for request message?
फर्स्ट फील्ड क्या होगी? फर्स्ट फील्ड क्या होगी? रिक्वेस्ट मैसेज की फर्स्ट फील्ड क्या होगी? रिक्वेस्ट है तो ऑब्वियसली पहली फील्ड रिक्वेस्ट लाइन होगी, फिर हेडर लाइन, ब्लैंक लाइन, हुई ना, एंड फोर ऐसा कुछ, एंड नेक्स्ट इज एंटिटी बॉडी, राइट? सो दैट इज अबाउट वी कैन से द रिक्वेस्ट लाइन। तो हमने कुछ मैसेज भी देखे थे, राइट? लेट्स से कि अगर ऐसा मैसेज दिया गया है एंड इट इज आस्क्ड दैट व्हिच कनेक्शन इज यूज्ड इन दिस मैसेज, पर वो कौन सा है? हाँ, यहाँ पे ऐसा पूछा है कि कौन सा कनेक्शन यूज हुआ है, सो यू हैव टू राइट persistent। HTTP 1.1 इज द वर्जन, राइट? अगर वर्जन पूछा है तो 1.1 लिख सकते हो, बट अगर कनेक्शन पूछा है देन यू हैव टू राइट persistent connection। देन हाँ, कीप अलाइव है, so that is we can easily say कि कनेक्शन है वो ओपन रहता है ऑब्जेक्ट ट्रांसफर करने के बाद, so the status will be keep alive। but let's say कि अगर ऐसा हो गया कनेक्शन क्लोज, तो उसका मतलब क्या है? नॉन परसिस्टेंट, राइट? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट सर्व करने के बाद कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है, कनेक्शन क्लोज हो जाता है, राइट? सो दैट इज वी कैन से इट इज अ नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन। क्या? नहीं, वो RTT नहीं है। RTT तो पूरा डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है ना, क्योंकि पहला जो डिले RTT में कवर होता है दैट इज द प्रोपोगेशन डिले, राइट? सो वो नहीं है। देन दिस आर सम स्टेटस कोड्स। स्टेटस कोड मैंने बताया था कि अगर ये स्टेटस कोड है तो उसका मतलब क्या होता है? 200 है तो ओके, रिक्वेस्ट, योर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल। 301 मूव परमानेंटली, 400 बैड रिक्वेस्ट। 404 और 400 हमने ज्यादातर ब्राउजर में ऑब्जर्व किया होता है, राइट? 404 नॉट फाउंड, 400 बैड रिक्वेस्ट, राइट? सो ये ज्यादातर कोड हमने देखे होते हैं। 404 और 400 हमने ज्यादातर ऑब्जर्व किया होता है ये कोड, राइट? सो दिस इज द स्टेटस कोड ऑफ द रिस्पॉन्स मैसेज। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, so you have to remember। Then next is proxy server। तो proxy server क्या है? वेब सर्वर, और we can say वेब कैश और proxy server, वेब कैशिंग। ओके, सो ये डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम में से पूरा समझ में आता है। तब आप नहीं थे, तुम तीन नहीं थे, ये वेब कैशिंग करवाया था तब तुम 3 लोग नहीं थे। अच्छा, तुम लोग थे, तो कौन था क्लास में जब वेब कैशिंग करवाया? तुम अकेले? तमें था डिप्लोमा वाला स्टूडेंट? ऑनलाइन नहीं था पूरा क्लास? हाँ, ये तो याद नहीं है। ओके, वेब कैशिंग मतलब क्या? दैट लेट्स से कि इफ आई एम विजिटिंग एनी वेबसाइट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट्स से कि मैंने IIT बॉम्बे की वेबसाइट विजिट की है एंड आई एम विजिटिंग दैट वेबसाइट फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, सो तब उस टाइम क्या होगा कि मेरी जो रिक्वेस्ट जाएगी वो पहले कहाँ पे जाएगी? प्रॉक्सी सर्वर पे। प्रॉक्सी सर्वर क्या है? विच एक्ट एज अ इंटरमीडिएट नोड बिटवीन द क्लाइंट एंड द ओरिजिन सर्वर, राइट? अभी
प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगी, अपने डेटाबेस में चेक करेगी कि ये क्लाइंट ने पहले ये वेबसाइट विजिट की है, यस, तो अपने डेटाबेस में से निकाल के दे देगा. But if it has not stored that URL in their cache memory, so what it will do? It will send that request to the origin server, right? Origin server पे वो रिक्वेस्ट जाएगी. ओरिजिन सर्वर वो डेटा फेच करके पहले प्रॉक्सी सर्वर को देगा. प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा कि जैसे ही उसके पास वो डेटा आ जाता है, इट विल सेव दैट डेटा इनटू देयर कैश मेमोरी, उसकी कॉपी एक रख लेगा और वो डायरेक्टली किसको भेज देगा, क्लाइंट को, राइट. सो इन दिस वे इट वर्क्स. लेट्स से कि मैंने आईआईटी की वेबसाइट को दूसरी बार विजिट किया आफ्टर 2 or 3 days, राइट. सो इट विल नॉट टेक दैट मच टाइम. पहले जितना टाइम लिया था उतना टाइम नहीं लेगा, क्योंकि अब प्रॉक्सी सर्वर में वो डेटा अपनी कैश मेमोरी में स्टोर है, राइट. सो डायरेक्टली अपनी कैश से निकाल के क्लाइंट को सर्व कर सकता है, राइट. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वेब कैशिंग और प्रॉक्सी सर्वर. कंट्रोल शिफ्ट क्या से क्या करते हैं? उसमें प्रॉक्सी सर्वर का कंसेप्ट नहीं आएगा ना, ऑब्वियसली. वो जो, हाँ, ब्राउजर की हिस्ट्री से लेगा, उसमें प्रॉक्सी सर्वर का कंसेप्ट नहीं रहेगा. मतलब नेक्स्ट इज कुकीज ही है. नेक्स्ट इसके बाद का जो है वो कुकीज ही है. कुकीज मैंने करवाया था ना क्लास में, ये पीपीटी में नहीं दिया है, कुकीज करवाया था आई थिंक मैंने क्लास में, राइट. सो कुकीज क्या होती है? कुकीज इसमें नहीं दी है, बट कुकीज करवाया था क्लास में. क्या होता है वो? क्या सर्च करते मैंने अमेज़न या फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया था कुकीज में. हाँ, कुकीज कब से ट्रैक होती है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, राइट. कुकीज कब से ट्रैक होती है, वो तुम्हारा क्वेश्चन है ना. हाँ, जब मैं वेबसाइट को पहली बार विजिट कर रही होती हूँ, तब एक यूजर आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है, राइट. तब उस टाइम पे ही हमको एक पॉपअप मिलता है कुकीज को एक्सेप्ट करने का, राइट. एंड व्हेन वी एक्सेप्ट दैट, तब से हमारी एक्टिविटी पूरी ट्रैक होती है. जब जब हम वो वेबसाइट को विजिट करते हैं तब, राइट. खत्म नहीं होगी, बट वी कैन से फॉर सम टाइम इट विल बी टर्मिनेटेड, राइट. पर दूसरी बार हम लोग वही वेबसाइट को विजिट करते हैं, फिर से एक्टिव होती है, फिर से सारी एक्टिविटीज ट्रैक करती है और फिर टर्मिनेट हो जाती है, राइट. सो इन दिस वे इट वर्क. तो आ रहा है समझ में? कुकीज पीपीटी में नहीं दिया है. कुकीज का कंसेप्ट कुकीज पीपीटी में नहीं दिया है, वो आपको अलग से करना होगा. मैंने वन नोट में ऑलरेडी लिखा हुआ है कुछ क्वेश्चंस, राइट. सो आप वहां से रिफर कर सकते हो. वन नोट में से काफी सारी चीजें मिल जाएगी, थोड़ी रफ है बट आपको काम आ जाएगी. हाँ हाँ, ओके. सो एफटीपी, व्हाट इज एफटीपी? हाँ, वो तो उसका फुल फॉर्म है. डेटा कनेक्शन क्या करता है?
सारे पॉइंट्स को थोड़ा सिक्वेंशियली बोलोगे तो आप एग्जाम में भी ऐसे ही लिख पाओगे। पहले एफटीपी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेकेंड, इट यूजेस अ टू कनेक्शन। पहले ये बताना है, राइट? आपका एक पॉइंट भी बढ़ जाएगा। इट यूजेस टू कनेक्शन, डेटा कनेक्शन, कंट्रोल कनेक्शन। फिर डेटा कनेक्शन समझा दो। डेटा कनेक्शन क्या है? For transmitting the file, data connection is used. For control connection किसके लिए यूज होता है? Is it so? For authentication, to change the directory, right? Control connection के mainly दो features है. It is used for authentication, user authentication, and second is to change the directory. Control connection is used, right? So control connection दो चीजें बता सकते हो. Data connection, that for actual file transfer, data connection is used, right? It uses पोर्ट नंबर 21। फिर दोनों के लिए बता दो। डेटा कनेक्शन ये यूज करता है, कंट्रोल कनेक्शन। हाँ, तो फिर भी लिख सकते हो, पोर्ट का अलग से लिख सकते हो। डेटा कनेक्शन के लिए, कंट्रोल कनेक्शन के लिए ये। तीसरा पॉइंट, फिर फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हो? हाँ, आउट ऑफ बैंड है उसका जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन है, दैट इज एन आउट ऑफ बैंड। आउट ऑफ बैंड क्यों है? Why it is out of band? Obviously, ये एक साथ में parallelly it uses the two connections. That's why this protocol is referred to as a out of band protocol. Why? हाँ, it is a stateful protocol. क्या? Out of band है ना ये? It maintains the state information, that is, it is a stateful protocol, right? और क्या बोल सकते हैं? It is used for transferring the larger files, right? HTTP और FTP का टेबल भी मैंने वन नोट में दिया है, वो भी एक बार रिफर कर लेना। तो FTP ट्रांसफरिंग दी फाइल, कोई पण फाइल ट्रांसफर માટે FTP यूज થાય। ક્લાયન્ટ સર્વર માટે લેટ્સ સે कि कोई फाइल તમે ડાઉનલોડ કરો છો, તો obviously the two entities are transferring or exchanging the file। हाँ, कोई भी फाइल मतलब कोई भी ऑडियो, वीडियो, इमेज, कोई भी फाइल होगी डाउनलोड या फिर कुछ भी करते हैं तो वो FTP यूज होता है। नेक्स्ट इज, ये सारी चीजें कवर कर ली, राइट? ओके, कमांड कुछ दिए हैं। HTTP में कैसे स्टेटस कोड थे, इसमें कमांड्स है, राइट? तो कमांड आप याद, बहुत इजी है। यूजर तो किसके लिए यूज होगा? यूजर नेम, पास तो पासवर्ड, लिस्ट तो देन लिस्ट ऑफ द फाइल इन द करंट डायरेक्टरी, रिट्राइव तो RETR, स्टोर फॉर स्टोरिंग द फाइल। यस, हाँ, कमांड कहाँ पे यूज होता है? मतलब FTP का कोई प्रोग्राम बनाएगा, FTP उसके लिए कोई प्रोग्राम होगा, राइट? सो फॉर दैट वी रिक्वायर सम काइंड ऑफ अ कमांड। तो वो कमांड बैकएंड से फैच होते हैं। ओके, तो जैसे स्टेटस कोड था HTTP में 200, 404, 504, वैसे यहाँ पे रिटर्न कोड्स है, राइट? 331, 125, जैसे HTTP में स्टेटस कोड था, यहाँ पे रिटर्न कोड्स है। फिर ये हमने तीन कंपोनेंट्स है जो क्लाइंट के हैं, सर्वर के जो दो कंपोनेंट्स है, ये डायग्राम आपको याद रखना है।
यहाँ पे सारे कमांड दिए गए हैं, जिसका क्या मतलब होता है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, एक बार देख लेना, राइट। ये सिर्फ देखना ही है, बहुत ही इजी है, राइट। उसके कीवर्ड्स में से ही आपको याद रह जाएंगे। देन SMTP, ये भी हमने बहुत अच्छे से किया था। तो SMTP क्या है? फिर पुश प्रोटोकॉल, यस। इसका पूरा एक डायग्राम मैंने वन नोट में ड्रॉ किया है, इफ यू रिमेम्बर। एलिस बॉब वाला, तो वो याद है कंसेप्ट पूरा, वो पूरा कंसेप्ट याद है, एलिस एंड बॉब, राइट। So this is we can say about the SMTP. यहाँ से DNS स्टार्ट होता है। एनकैप्सुलेशन मतलब पता है? व्हाट इज एनकैप्सुलेशन? यस पथिक। No, ma'am, nothing. By mistake. अच्छा, बाय मिस्टेक। ओके, सो व्हाट इज एनकैप्सुलेशन? एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? एनकैप्सुलेशन, डीकैप्सुलेशन। It's like keeping different variables under a certain category and keeping different, just like categorizing something. It's like a yes, Pranjul, it's like It is like keeping categorizing everything, keeping different variables under certain class, different variables under different. That is encapsulation. हाँ, ये एनकैप्सुलेशन का जो कंसेप्ट है वो आप जावा का बोल रहे हो, इज इट वो? No, I'm just talking a meaning of certain meaning of that. I'm not talking in context of programming. I mean, like categorizing things is called as encapsulation. ओके ओके ओके, आप क्या बोल रहे थे हर्षवर्धन? हाँ, ओके, इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, ओके ओके, यस। अब okay, in terms of a networking, encapsulation is quite different, right? Let's say कि अगर हम कोई एक सिनेरियो कंसीडर करते हैं कि मेरे घर पे कोई कुरियर आया है मेरे लिए, राइट? सो लेट्स से कि मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए कोई एनवलप भेजा है, मेरे लिए है वो, बट मैं घर पे नहीं हूँ, मैं किसी और जगह पे हूँ, राइट? जहाँ पे मुझे वो जो एनवलप आया है वो मुझे फिर से कहीं पे कुरियर करना पड़ेगा, जो भी घर पे होगा जिसने रिसीव किया है उसको फिर से वो एनवलप मुझे कुरियर करना होगा। सो वो क्या करेगा कि जिसने भी घर पे मेरा जो एनवलप है वो रिसीव किया है, वो क्या करेगा कि वो एक और एनवलप में जो कुरियर था, जो एनवलप था, वो एक और एनवलप में डालेगा, राइट? सो जो ओरिजिनल एनवलप था उसमें सोर्स एड्रेस क्या था? मेरी फ्रेंड का था वो सोर्स एड्रेस था, और मेरे घर का था वो डेस्टिनेशन एड्रेस था, राइट? मेरी मम्मी ने वो एक्सेप्ट किया, फिर से वो एक एनवलप में डाल रही है। अब सोर्स एड्रेस क्या होगा? मेरे घर का एड्रेस होगा, वो सोर्स एड्रेस होगा, और मैं जहाँ पे हूँ वो मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। तो वो क्या किया? एनकैप्सुलेशन, putting header on the actual envelope, or we can say on the actual data packet, that is we can say encapsulation, right?
फिर से एक्चुअल हेडर तो था ही, एक्चुअल हेडर क्या था, मेरी फ्रेंड का एड्रेस, डेस्टिनेशन मेरे घर का एड्रेस। अब एक और हेडर मैं पुट कर रही हूँ, उसके ऊपर एक और एनवलप में डाल के उसके ऊपर एक और हेडर पुट कर रही हूँ, दैट इज source address will be my home address and destination address will be my the current address wherever I am, right? So that is, we can say the whole process, we can say it's an encapsulation. Now जब मैं वो पैकेट रिसीव करूंगी तब मेरे पास एनकैप्सुलेटेड पैकेट होगा, राइट? पहले मैं क्या करूंगी, जो एक्स्ट्रा हेडर था वो पहले मैं रिमूव करूंगी, जिसमें मेरे घर का एड्रेस था वो सोर्स एड्रेस था और मेरा जो एड्रेस है वो डेस्टिनेशन एड्रेस है। So I am removing the extra header from that particular packet, so I am decapsulating that packet, right? जब मैं वो एक्स्ट्रा हेडर को रिमूव कर रही हूँ, दैट इज वी कॉल्ड इट एज अ डीकैप्सुलेशन, राइट? समझ में आया एनकैप्सुलेशन, डीकैप्सुलेशन इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क। Okay, so write your enrollment number in this box. Online students, write your enrollment number in the chat box. आप में से कोई लिख दो, अगर है तो लिख दो, वरना मैं यहाँ से लिख लूंगी। नंबर्स खाली बोली जाओ या चैट बॉक्स में लखी दઉં છું। D2D नंबर्स बोलो आप। 002 4 6 ओके 18 सीरीज AI ने 18 सीरीज જ છે ને, કઈ છે? ओके AI बोलो 3 18 ओके सो यहाँ तक क्लियर है सबको? सेकेंड चैप्टर, यहाँ सेकेंड चैप्टर में हमने कहाँ तक रिवाइज किया? PPTs आर ऑलरेडी अपलोडेड, ई कंटेंट में ऑलरेडी अपलोड कर दिए। तो सेमा PPT એટલે વાંચવું છે શું તારે? ઈ વન નોટ માં આવશે ને એક્ઝામ્પલ વાંચવા માટે વન નોટ, PPT અને રેફરન્સ બુક, all these three things અત્યારે નહીં ખમો, હજી પૂરું નથી થયું। ओके सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, आई थिंक, राइट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक्नॉलेज मी। ओके सो इन दी सेकेंड चैप्टर यहाँ तक हुआ है हमारा एनकैप्सुलेशन, डीकैप्सुलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डीएनएस से स्टार्ट करेंगे, फिर डीएनएस और सॉकेट प्रोग्रामिंग दो ही चीज रहेगी, राइट, रिवीजन में। बाकी हमारा सेकेंड चैप्टर खत्म। अगर फिर भी कुछ रहता है, कोई डाउट रहता है तो फिर बता सकते हो। Ma'am, can we leave after putting attendance? Yes, yes, yes. ना ना यश गामडा आपने
स्टार्ट कर दिया CCNA का कोर्स? यश इज नॉट देयर. मैम